Hello, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. We are here once again. So, I hope you all are doing amazing. All right. I'm Khadija and my husband Raz, Faraz. So, today we have decided to narrate a story. a spontaneous story. Spontaneous. We will gonna narrate a story randomly. We will decide the character's name randomly on the spot. We will decide the location as well on the spot. Yes. But why we are going to do this? For us, you tell them why. Because it's our anniversary today and we, Yes. we thought do something different than we usually do. Something which we wanted to do for a long time. Also, we've been watching a YouTuber called Kautuk Srivastav, who's a part of TIS. TIS is probably the biggest podcast, मेल बेस्ड पॉडकास्ट इन इंडिया. सो उससे इंस्पायर्ड हुए हैं. और बट यह चीज़ हम लोग डे वन से करना चाह रहे थे, बट आइडिया नहीं मिल रहा था. सो नाउ वी गॉट एन आइडिया. सो आई एम गोइंग टू जनरेट नंबर हेयर. स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहीं कहीं लगा होगा, आप देख सकेंगे कि कौन सा नाम जनरेट होगा. वी आर गोना यूज गूगल फॉर दिस. सो लेट्स डू इट. सो विल टेक लड़के का नाम एज जया. जया. लड़के का नाम जया होगा. लड़की का नाम लड़की का नाम जया जया होगा. एंड और लड़का यश. यश. यश, Fine. राइट. Yeah, Jaya and जया एंड these are the यश. final characters. सो एक ये हो गया है. नाउ विल गोना यूज चैट जीपीटी for place name. So railway. So the place will be railway station. Good. Now, And the location will be Manali. yeah, let's take it at a hill station. Hill station Manali and hotel. Yeah, लड़के का Right. नाम यश, लड़की का नाम Jaya. जया, And and place is railway railway station. station. So these three will be the main So component. we will not decide about the object and all. No There is no object is there. object. So the series name is what? The The F. F Because question mark ये open ended stories रहने वाली हैं. So just to give story. you a gist. हाँ. Also, this is unscripted. हम लोग अभी सोच रहे हैं अपने दिमाग में जो भी नाम हमने सामने जनरेट किए हैं, उसी बेसिस पे ये स्टोरी रहेगी. So खदीजा स्टार्ट. So it is 25th November 2023. It is cold weather, extremely cold, and there was a boy and a girl, Yash and Jaya. They decided to go on a trip to Manali as they wanted to celebrate their first anniversary. So they were not married couples, they were unmarried. So Jaya and both gave the same excuse to their parents that they are going as a office trip. So they decided to meet at railway station, which is just 5 kilometers away from their home. So and they have to उन लोग को 3:45 पर मिलना था रेलवे स्टेशन पर. So वो लोग उठे, निकले घर से और रेलवे स्टेशन पहुंच गए, which was just 5 kilometers away. So there was a complete silence over there. No, only few people were there, and there was a stall of chai, which was just near the bench. They sat on the bench. They were very happy, very happy. बातें कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं और वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वहां जाएंगे, तो यहाँ कर ये करेंगे, वो करेंगे, फोटो खींचेंगे and all. ये सब डिसाइड कर. So then they waited at least for, because the arrival of the train is at 5 a.m. So and they reached there around 4:15 a.m. So they sat over there gossiping and all.
Farhan, you would. So Yash and Jaya दोनों वहाँ बैठे थे. So they Yash thought to get tea, 2 cup of tea. So the stalls उन्होंने 2 cup ली चाय की, and then they settled in on the bench. As they can see, the time was 4:20, and they have to wait at least around 40 minutes for the train to arrive. So वो लोग आराम से वहाँ बैठ के चिट चैट कर रहे हैं about how their friends helped them in making this program, because उनके मॉम डैड ने उनके कॉलेज और वर्किंग प्लेस पे कॉल करके कंफर्म किया था. उनके दोस्तों ने एज अ झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ ट्रिप है हमारे. एज द बोथ आर इंटर्न्स इन आवर वर्किंग, बिकॉज अब इतनी यंग एज में इंटर्नशिप भी मिल पाती है. तो एक कॉल सेंटर में इंटर्नशिप करते हुए उन्होंने बोला कि चलो हाँ ये ऑफिस की ट्रिप है, हम सब जा रहे हैं. तो इसलिए उनके मॉम डैड ऐसे ही में. सो now while waiting at the station दोनों बहुत excited हैं. Time flew by, as you know, when you are with your loved ones time तो भागता ही है. Suddenly they heard the roar of the engine. अभी यश was a little surprised कि यार ये थोड़ा पुराने ज़माने का इंजन नहीं है जया. जया उसे लोग अरे यार ये तो यार हैरी पॉटर वाला इंजन लग रहा है. It was an old steam locomotive filled burst of steam with huge cloud of steam all over it. It rolled in slowly. The whistle of the engine screaming out, and the train looked fine because they booked a 3AC ticket, which was a side, and they booked side berths. एक ऊपर बर्थ होती है, एक नीचे बर्थ होती है, तो साइड बर्थ थी उनकी. सो उनका बोगी नंबर 12 सीटा था. दोनों फटाफट खड़े हुए, अपने आप को झाड़ा-झूड़ा, गेट रेडी फॉर टू बोर्ड द ट्रेन. Train arrived on time as usual, and they board the train. The compartment was almost empty. Only a few berths were occupied. Yeah, सही है, पूरी ट्रेन हमारी है. So they got settled in their respective seats, and Abhishek got down, got themselves a bottle of water, and they settled in their seats. Abhishek, Yash thought कि चलो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई. दे बोथ वर एक्साइटेड बिकॉज़ एग्ज़ॉस्टेड, बिकॉज़ इतना एक्साइटमेंट था कि जया और यश दोनों सो नहीं पाए थे और रेस्ट नहीं कर पाए थे कल के पूरे दिन. बिकॉज़ एक एक होता है ना, एड्रेनालिन रश होता है बॉडी में कि यार कल मिल में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं. सो दे बोथ वर एक्साइटेड. तो जया ने बोला हाँ यार थक गए, लेट्स सेटल. दे हग्ड एंड देन गॉट सेटल्ड टू देयर रिस्पेक्टिव बर्थ्स. And they instantly both of them fall asleep because मोबाइल निकालने का भी मन नहीं किया उनका, थक गए तो सो गए. Suddenly someone poked Yash on his shoulder. After a few minutes of poking, Yash suddenly woke up and he was like, भाई क्यों टच कर रहे हो? There was a guy standing near his berth holding a kettle. तो पुराने ज़माने की जो केटल होती है चाय की, वो होल्ड किए हुए खड़ा हुआ है. उसके दूसरे हाथ में कुल्हड़ का पैकेट है और वो बोला कि सर आ गया स्टेशन, कहाँ जाना है? तो सुना अरे भाई मनाली के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा स्टेशन है वहाँ से कैब लेंगे. सर आप जो भी लीजिए, ये लास्ट स्टॉप है. सडनली यश की आँख खुली. व्हाट? कितनी देर सो लिए? 10 घंटे का सफर था इस ट्रेन का. बोला कि सर हमें 10 घंटे का पता नहीं, बट आ गया लास्ट स्टॉप है, उतरिए. तो उसने अच्छा ठीक है, थैंक यू. यश ने अपने आप को सीधा किया, खड़ा हुआ और जया को पोक किया कि जया उठो, इट्स टाइम. जया उठी. They both look at their phones and it was 4. It was 4 p.m. the next day. They slept for almost 10 hours, almost 12 hours, and they were like, ट्रेन लेट हो गई क्या? 10 घंटे का सफर था, हमें तो 2 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था. अभी हो जाती है, इंडियन रेलवेज है, टाइम पे कब आती है. They both laughed it out. They got down from the train, and while getting down, यश जब सामान उतार रहा था दोनों का, तो यश ने नोटिस किया कि बोगीज का कलर कुछ वियर्ड था. बिकॉज नॉर्मली एसी बोगी का कलर या फिर रेड होता है या फिर ब्लू. ये बरगेंडी कलर की बोगी थी, इसमें लकड़ी की फ्रेमिंग थी. वाज लाइक यार ये को हम लोग इसी ट्रेन में चढ़े थे ना जया. आई वाज लाइक हाँ पता नहीं, मुझे नहीं याद अब. ट्रेन बड़ी अजीब सी लग रही है बाहर से, अंदर से तो सही थी.
जया ने फिर अंदर जाके एक बार जाकर बोला, हाँ वही है, एसी कंपार्टमेंट है। बाहर से विंडोज अजीब सी क्यों लग रही है? छोड़ो चलते हैं यार, कैब वाला खड़ा होगा। कल कल शाम को ही तो मैसेज करके होटल वाले ने डिटेल्स दे दी थी तुमने? अरे हाँ हाँ दे दी थी। They got down at us at this station and they saw it was an old school पुराने जमाने का स्टेशन with कुलीज, धोती कुर्ता में कुलीज घूम रहे हैं वहाँ। पुराने जमाने की घड़ी लगी, ब्लैक कलर की, काले कलर की बड़ी सी घड़ी लगी है। और लाइट्स भी नहीं दिखी उन्हें कहीं। जो एक दो हैलोजन दिखे पुराने ज़माने के येलो कलर के, जो हैलोजन थे। लाइक यार ये शहर आगे नहीं बढ़ पाया लग रहा है, ये अभी भी 1950s में है। They both laughed it out, got out of the station, and they found started to find their cab. Suddenly they noticed a blue color ambassador car, aware of ambassador car, पुरानी गाड़ी जो काफी सालों से यूज में है। They noticed, and the number plate matches the description they have. So the driver's name was Ramlal, and they tapped on the bonnet कि भाई, तो रामलाल खड़ा हुआ था। रामलाल was a young guy, average height. He was like, अरे आप ही हैं ना यश साहब और जया मैडम? बोले हाँ। तो पहले तो रामलाल ने थोड़ी देर जया को देखा, तो यश ने बोला सॉरी। सो कोई बात सर, सर माफ कीजिए सर, सर मैम के कपड़े थोड़े अलग लग रहे थे, माफ कीजिएगा सर, हम माफी मांग। अच्छा ठीक है चलो होटल छोड़ो। तो आसपास उन्होंने नोटिस किया यश ने कि all cabs were old Fiats, old ambassador cars, nothing else, and there were some Tongas as well. तो बोले ये fucking they said चलो चलते हैं। रास्ते में ऑन द वे जया ने बोला यार, कल शाम आज सुबह का नाश्ता नहीं की, दोपहर का लंच भी नहीं किया। आई एम वेरी हंग्री यार, प्लीज लेट्स स्टॉप फॉर अ क्विक स्नैक टू बाइट। तो यश ने बोला यस यस। तो उसने रामलाल, रामलाल भाई ज़रा कोई अच्छा सा ढाबा हो वहाँ रोक देना, हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी कर लें। तो रामलाल ने बोला सर यस प्लीज़, हम रोक देंगे बिल्कुल। तो होटल की राइड जो थी 3 घंटे की थी, यानी कि वो लोग ऑलमोस्ट 4:20 पे कैब में बैठ गए थे, तो उन्हें ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 बजने वाला था। तो अराउंड 6 रामलाल ने एक पुराने ज़माने के ढाबे, जो ओल्ड स्कूल ढाबे होते हैं जिनकी छप्पर होती है बट खुशबू बड़ी अच्छी आती है जहाँ से उन ढाबों पे रोकी गाड़ी। तो सर आप यहाँ नाश्ता कर लीजिए। ओके, दे गॉट डाउन। दे अभिषेक सॉरी यश यश वाज लाइक भाई एक काम करते हैं, हल्का-फुल्का खाते हैं, हैवी नहीं खाते हैं, हम होटल में जाके भी डिनर मिल जाएगा क्योंकि 7 बजे से डिनर चालू हो जाता है। तो उसने कहा जय ने कहा यस। सो दे ऑर्डर 2 cups of tea, a plate of samosas and a plate of bread pakoras. They both sat in, enjoyed the snack meal, whatever it was. And once up, Yash went towards the shopkeeper's dhabas owner counter and asked, भाई स्कैनर दे दिए, पेमेंट कर दो। सर क्या दे दें? सर स्कैनर मोबाइल से पेमेंट करनी है ना। बोला सर देखो ये सब मत दिखाओ मुझे, ये क्या है आपके? बोले कि क्या है क्या? मोबाइल है, पेमेंट करनी है मुझे सर। बोला कि सर कैश कैश नोट दे दीजिए, ऐसे नहीं चाहिए, ये सब नहीं पता क्या आप दिखा रहे हैं। बोले कि भाई लखनऊ में सब जहाँ से हम आए, लखनऊ से आए हैं, वहाँ यही चलता है। बोले कि साहब बड़े शहरों में क्या चलता है हमें नहीं पता, हमारा कैश चाहिए साहब। उसने आसपास देखा, दूर तक कोई और होटल नहीं था। तो उसने अपना पर्स खोला, जो यूज भी नहीं करता था लेकिन 100 200 रुपये रखे रहता था। तो उसने क्या कितना हुआ कितना हुआ? थोड़ा सर 5 रुपये। कम अगेन। तो उसने क्या क्या कहा सर? जब फिर से बताइए। तो ढाबे का सर 5 रुपये दे दीजिए, ज्यादा कम, इससे कम नहीं, हम डिस्काउंट नहीं देते। तो बोले कि अच्छा। तो उसने अपना पर्स में देखा तो एक पुराने जमाने का ग्रीनिश कलर का एक 5 रुपए का नोट आता था जब हम लोग छोटे होते थे, उस तरह का नोट उसके पर्स में रखा हुआ है। उसने निकाला, थोड़ी देर तक ताड़ा उस नोट को, देन इसे ओके हैव इट। उसने ये